it was quite a little, I mean, I will say it was a experience that I can never forget because I literally bunked my school for this. Okay. So because मैं एक म्यूजिकल घराने से बिलोंग करती हूँ, दैट इज़ लखनऊ घराना. तो वहाँ पे कुछ समय पहले तक रियलिटी शोज को उतना दे वर लाइक नो यू बी इन योर क्लासिकल जोन, यू डोंट हैव टू डू दिस एंड दैट. But then somehow I spoke to them and they were like, okay, let's see, we'll try next year. But I was like, no, I have to go this year because I could see a lot of singers going and doing very good after the reality shows and everything. So मैं स्कूल गई हुई थी, मैंने सडनली स्कूल बंक किया. मैं अपने स्कूल के बस से उतर गई और मैं जहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे आई वेंट देयर एंड मैं क्यू में खड़ी हूँ. एंड स्कूल की टाइमिंग कुछ सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक होती थी. एंड आई हैड टू मेक श्योर कि मैं वापस बस में चढ़ जाऊँ. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ever bunked my school. Okay. And I think somebody saw me outside, like going on road in a school uniform. So somebody informed also my dad. And my dad was like, call police and this and that. What happened? Where has she gone? What has happened to her? What's gone into her? I was like, no, nothing has gone into me. I was like, मेरे को देना है audition क्योंकि dad अभी शायद नहीं करने देंगे. I went there, I got selected, but मैं टाइम से घर नहीं पहुंच पाई. एंड एवरीबडी वॉज क्यूरियस कहाँ गई, माँ परेशान, शी वॉज क्राइंग, कहाँ चली गई. मैं बस घर वापस आती हूँ बट नॉट इन द स्कूल बस. आई वॉज कमिंग विद द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का द वैन एंड द इंडियन आइडल का पूरा इंटायर बस एंड द क्रू विद द कैमराज बट इन द स्कूल यूनिफॉर्म. Okay. So it was like my dad, he just opened the door and was like, "Tu kaha?" And then, "Hello sir, how are you?" And this, and my dad is so simple. He was in his trousers and घर के कपड़े and everything. He was like, "ये क्या हो रहा है? What are you doing? What have you done? Have you killed somebody?" I said, "No, I have not done anything. This is Sony Entertainment Television. These people are from the channel. They have come to meet you guys and take your permission because I was a minor that Right. time." So they were like, "We need the permission. She has got selected and we are taking her to Bombay. We need some from like family से कोई आना चाहता है. You can come." And I was like, "Are you happy with this?" And he was like, "चल अब हो ही गया selection तो अब कर ले." So Right. this is how it started and sort of their mentality changed कि नहीं people, क्योंकि मैं बनारस जैसे एक बहुत छोटे शहर से हूँ जहाँ पर आप बहुत फ्रीली, उस टाइम तो नहीं इतना सब कुछ था, लड़कियों के लिए सेफ नहीं था. तो मॉम डैड हमेशा से क्योंकि मैं डांस शोज करती थी तो उसके लिए दे वर ओके बिकॉज दे यूज टू कम अलोंग एंड एवरीथिंग. बट बॉम्बे अकेले भेजना वाज अ बिग डील. पहली बार बनारस से बॉम्बे जा रही थी. But then somehow it happened. God was there, universe was with me, and everything just sorted out. I got selected. I was the finalist, and till date I am known as an Indian Idol folk contestant. Yes. That's great. Meet Ananya Mishra, and we all know now that she is a famous singer. And आप कहाँ से है, आपने कहाँ से सिंगिंग सीखी है, आपका घराना क्या है? टू स्टार्ट विद, मैंने शुरुआत करी थी कथक डांस से. आज भी मैं कथक के शोज़ करती हूँ. मैं अभी भी कथक डांसर हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली दैट इज़ फ्रॉम लखनऊ घराना. कालका बिंदादीन महाराज जी का घराना. पंडित बिरजू महाराज जी मेरे ग्रैंडफादर थे. मेरे डैड के सगे मामा. And मेरे dad himself is a Kathak dancer. He is awarded with national awards with Padma Shri. And मैंने 4 national awards जीते थे till the age of 12th I think. I was the only child at the age of 6 who won. And मेरा इसके लिए लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है that I was the only child at that time जिसने 6 साल की उम्र में एक national award जीता था. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. बट देन समहाउ मुझे बचपन से ही ना क्योंकि घर में गायन वादन नृत्य तीनों हैं. डैड गाते भी हैं, डैड ठुमरिया बनाते थे, कंपोज करते थे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे. सो दैट जस्ट मेड मी सो क्यूरियस ऑफ कि नहीं डांस तो हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग, आई एम विनिंग कॉम्पिटिशन्स, डूइंग डांसिंग एवरीवेयर. बट देन आई थिंक आई कैन सिंग एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग विद डैड. घर की हमारी ठुमरियाँ होती थी, हमारे नाना जी की ठुमरियाँ, पापा की ठुमरियाँ, वो गाते गाते गाते. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक कभी भी ऐसे किसी गुरु से बैठ के सिंगिंग नहीं सीखी है. पर मेरे डैड ने जितना मुझे सिखाया, वो आशीर्वाद दिया कि मैं आज क्लासिकल भी गाती हूँ, मैं सेमी क्लासिकल भी गाती हूँ, मैं बॉलीवुड भी गाती हूँ, मैं पंजाबी गाने भी गाती हूँ. सो आई थिंक इट वॉज, आई एम ब्लेस्ड विद दैट ब्लड in my body. I think that Right. I was surrounded with the musicians all the time. So yeah.
सो आप कितनी प्रैक्टिस करती है रोज? सी इतना बोलने में कि ठीक है, यू हैड अ फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग वाज फाइन, इट Yes. सीम्स इजी, Yes. बट आपको उतना हार्ड वर्क भी करना पड़ता होगा। सो आप Exactly. रोज कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो मैं आई विल स्टार्ट विद कि यू नो लोग कहते हैं हमें आकर कि अरे ये तो उनके घराने से है तो वो तो अच्छा ही करेगी, या ये तो उनको तो सब आता ही है, इनके खून में है। बट लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जो तालीम होती है या हम जिस तरह से सीखते हैं इज़ फार डिफरेंट देन द किड्स जो स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सीखते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारी फैमिली, मेरी फैमिली इज़ अ हार्ड कोर म्यूजिशियन फैमिली। मतलब सुबह 5 बजे रियाज करना है, मतलब 5 बजे आपको घुंघरू पहन के या हारमोनियम या तानपुरा लेके खड़ा होना है हॉल में। एंड डैड मेक श्योर कि आप 5:30 बजे तक नहा धो के पूजा वूजा करके बराबर, एंड देन ओनली यू टच योर घुंघरू और योर हारमोनियम। सो मैंने वो तरह से सीखी है, मेरे डैड ने मुझे वो तरह से सिखाया हुआ है। एंड आजकल तो इट्स टू इजी, लाइक यूट्यूब पे लोग सीखते हैं एंड यू नो दे गेट इनटू बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड दिस एंड दैट, बट हमने जो सीखा है वाज टोटली डिफरेंट। सो यू फील नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसे ही टूट फूट के सीखने से अच्छा प्रॉपर। एग्जैक्टली, आई थिंक अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है ना, इफ यू सी अ बिगर पिक्चर, सी आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज सीज अ बिगर पिक्चर। आई एम नॉट इन अ रश टू गेट लाइक मेरे को 2 महीने में सक्सेस चाहिए, मेरे को 6 महीने में सक्सेस चाहिए, वो नहीं आती है। देर इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर दैट यू शुड सी कि अगर हम अपना कंटेंट, जो हमारे खुद का नॉलेज है, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना, देन यू आर एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट द सिमिलर जोन जहाँ आपको करना है। मैंने हमेशा से सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो जिसके लिए मुझे मेरे बाद भी याद रखा जा सके, मेरे जाने के बाद भी लोग याद करें। जैसे कि लता जी थी, या फिर मेरे दादाजी पंडित बिरजू महाराज जी थे। मतलब आज भी अगर आप नाम ले लो तो एक छोटा बच्चा भी कान को हाथ लगाता है कि हाँ ये कोई थे। सो आई वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने बहुत तरह की तालीम और उस तरह के माहौल में पली बड़ी हूँ। मुझे हमेशा ये सिखाया गया है कि संगीत ऐसी चीज़ है जो कभी आपके जाने के बाद भी आपसे छीननी नहीं चाहिए। राइट। So that is what I'm working on, and I hope I get through it. No, of course, you're working so hard, you'll definitely get through it. But आप थोड़ा ये बताइए कि you went to Indian Idol, right? Yes. हम लोग सब टीवी में देखते हैं, we watch every weekend since so many years. Yes, yes. अच्छे जजेस दिखते हैं, appreciation दिखता है, practice दिखती है. What is Yes. actually behind the stage? Are they actually, who were your judges, and are they actually so supportive and lovable, or it's just a picture of perfection? So I tell you, when I did Indian Idol, I did Indian Idol 4, the Okay. 4th season. तो तब भी इंडियन आइडल बहुत नया नया था. इट वॉज ओनली द 4th सीजन. Okay. नाउ आई थिंक वी आर रनिंग विद 20th और 21st सीजन. Right. आई थिंक बहुत कुछ बदला है. मैं आज का तो नहीं जानती कि आज के डेट में कैसे क्या होता है. इज इट लाइक जजेस अच्छे हो हैं नहीं है क्या है. बट आई फील लाइक हमारे टाइम पे थोड़ा टफ था रियलिटी शोज में जाना, बिकॉज आज के टाइम पे लोगों को लिटरली कॉल आते हैं that we want you as a contestant. Why? Because a few people are you know getting नया वायरल on Instagram. किसी का कोई गाना हिट हो गया या किसी का कोई कवर हिट हो गया या वो ट्रेंडिंग में आ गया. सो आपको आजकल फ़ोन आते हैं सामने से एज इन की वी वांट यू एज अ कंटेस्टेंट. बट हमने घंटों घंटों लाइन में लग के एंड वैसे जाके वो सिलेक्शन और वो वाला रियलिटी शो देखा है. बट आई थिंक जहाँ तक जजेस की बात होती है, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. फॉर मी दे हैव बीन, आई डोंट नो अदर पीपल्स एक्सपीरियंस विद द रियलिटी शो, बट मेरे टाइम पे जावेद सर थे, जावेद अख्तर जी, सोनाली बेंद्रे मैम थे, कैलाश खेर सर थे, अनु मलिक सर थे. मैंने कैलाश सर के साथ काफ़ी स्टेज शोज भी किए. हमने प्रमोशंस आइडल के किए साथ में. सोनाली मैम यूज्ड टू कॉल मी. आई थिंक इंडियन आइडल ख़त्म होने के 4-5 साल बाद तक उन्होंने मेरा बर्थडे विश किया है मुझे फ़ोन कर करके. दैट शी वाज सो नाइस एंड लाइक फैमिली. शी यूज्ड टू सेंड मी केक एंड आई वाज इन बनारस दो तब भी. एंड येस हम मिलते रहते थे. अनु जी से भी मिलते रहते थे, उनकी डॉटर्स के साथ शोज़ किए हैं मैंने. सो दे हैव बीन वेरी नाइस. एंड रही बात कि उसके बाद क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, तो वी एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व इन टू लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर आइडल. यू नो वी especially me, I never ran behind the playback wala thing. I never wanted to be a playback singer, if I say, because my place is the stage. Okay. I wanted to be a pop star, I wanted to be a rock star, I wanted to be a performer. And
वो चीज़ मुझे इंडियन आइडल ने बहुत अच्छे से दी, बिकॉज पीपल स्टार्टेड नोइंग मी. आई स्टार्टेड डूइंग रियलिटी शोज एंड लाइव शोज, कॉर्पोरेट शोज. सो लोगों का प्यार मिलना, एंड दिस इज व्हाट आई क्रेव फॉर. सो अनन्या, हमने आपकी सिंगिंग की, हुनर की काफ़ी बातें कर ली. सो नाउ टेल मी दैट हाउ सिंगिंग इज़ रिलेटेड टू फैशन. आप सिंगिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, उसमें मेहनत भी बहुत करते हो, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, हाउ डज फैशन हेल्प यू देयर? तो फॉर मी आई थिंक फैशन इज कंफर्ट. मैं जब तक स्टेज पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं जब तक कंफर्टेबली पब्लिक के साथ या फिर अपने स्टेज पे जो भी मुझे, क्योंकि स्टेज पे यू नेवर नो आप किस तरह के ऑडियंस से मिलने वाले हो. लाइक कभी कभी ऑडियंस बहुत शांत होती है, दे वांट टू जस्ट कीप लिसनिंग, एंड द अनप्लग्ड काइंड ऑफ शोज दैट आई डू. So I try to wear something, very a gownish kind of thing wherein I can, look like a princess and, sing along with people. Yes. But there are shows wherein I have to go mad and crazy with the audience. So I prefer wearing something which is very comfortable in my zone, and, nice pants and nice, so that I can jump, I can, throw myself in crowd and, and go mad with them. So for me, I think fashion has always been my comfort level. मुझे जो comfortable लगता है. और आई थिंक सिंगर्स को आज के टाइम पे मैंने देखा कई बार इतने हील्स पहन लेते हैं सिंगर्स. ऑल्दो मैं बहुत टाइम पहले तक आई यूज्ड टू वेयर इट एंड इट जस्ट हार्म्ड माय नीज समहाउ, बट देन now I thought ki nahi, I can't do this, and singers going mad over heels and this and that. But then I was like, no, this is not me. So for me, fashion and singing is related to my comfort zone. If I'm comfortable into something, I just wear it and I go and So you throw have myself out. fashion stylist, or you choose your own clothes according I to your have, mood? yes, I have a very good stylist with myself, but again, she's very much, like, तूने तो वही पहनना है जो तूने पहनना है. So I just take kind of help from her. But then yes, I go all into my fashion by myself, and like, I want to wear this, I want to wear this. जो That's दिखता it. है वो बिकता है. आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन प्रेजेंटेबल परफॉर्मर को होना पड़ता है. आई थिंक मेरे हिसाब से आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसी लड़की लड़का, आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं है जो फैशन नहीं कर रहा है. I think everybody is into fashion. Even if you see small kids, they know what they want to wear, and little kids doing this and that into fashion. So I think पता सबको है क्या करना है क्या नहीं करना है. बट देन अगेन पीपल नो कि यार मुझे पता होता है कि मेरे स्टाइलिस्ट से मुझे क्या चाहिए, कैसा इवेंट का रिक्वायरमेंट है. देन आई गो, बिकॉज इफ आई कैन शेयर अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस Yeah, of ऑफ course. माइन. कभी कभी कुछ शोज ऐसे हुए हैं, corporate shows wherein public comes very close to the stage and कि perform कर रहे हैं. But there I had a very bad experience in an event. It was a corporate show. I was wearing this nice skirt and a top and everything. So there was this guy who just randomly came with a phone and he just tried to shoot me in a very wrong way. Right. And that was the time that I dropped my mic on the stage and I was like, I am here to entertain you. I am here for you like 1000%. But this is not what is required. This is wrong. Right. You cannot do this. So while performing live, especially in India, it is very important to make sure that you have that comfort zone that, okay, I can be fine even if somebody's going wrong in some certain ways, Right. because you face different people. Yeah. There are 10,000 people in front of you wherein you don't know whose nature is what. Right. So they do come, but then now we know how to manipulate and how to go through it. Yes. True. Yeah. So we have seen, now we've heard what Ananya was and what is her journey. Now what Ananya wants to be. आपका next Yes. project कुछ? So I am now working on my original songs basically, because again, as I said, I'm not a playback person at all. I am not running behind a playback song for me. I'm just creating my own sort of music that I like. Okay. And I want people to, listen to the music which is actually music. आजकल के गाने जो बनते हैं लोगों को पसंद आते हैं. आई नो देयर आर द जेन जीज एंड एवरीथिंग ये वो, बट being from a musical family, I know the rawness of music, and that is why I am trying to create the music that I am very sure going to be a long-term thing for me. And I'm releasing my first original next month. Oh, that's by nice. God's grace, yes, and hoping it's gonna be a big hit. Of Yes. course, it's going to be a hit. So Ananya, अभी
things have changed. Yes. What you were before, as you said, what journey you went, everything is on social media. Yeah, Right. everything. Yeah. So what is the connection of Ananya Mishra with the social media? Are you getting the hang of it? Are you learning? Are you pro? What is it? Uh, for me, social media is a platform where, I just anytime go and I just do anything I want. There is nobody stopping me. Even if there are people who don't like me or like me as a content. See, people have different choices. True. You can't force people to, no, you have to like my song. You have to like my acting. You have to like my dancing. No, you cannot do that. Right. तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पहले के ज़माने में अगर मैं बात करूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, बहुत मुश्किल होता था हर चीज़ के लिए ऑडिशन करो, हर चीज़ के लिए आपको घंटों घंटों लोगों का इंतज़ार करना है, ऑफिस में जाना है. बट आज के टाइम पे यू हैव सोशल मीडिया इन योर हैंड. आपको अपना टैलेंट दिखाना है, बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे, depends upon the content. If you know how the contents are going in the wrong direction these days. Right. But music wise, if we talk, yes, I am a hop on Instagram person, 24/7, loving the view, loving the love that I'm getting on stories, on my songs, on my covers, on my random. मैं रात को बैठती हूँ और Instagram on करके कुछ भी गा के डाल देती हूँ, and I get so much love. So how do you handle trolling? Trolling as such, see, the fact I know that कि मैं सबको पसंद नहीं हूँ, नहीं आ सकती, मुझे भी सब लोग पसंद नहीं है. You can't make everybody Yeah, happy. what I do is I'm a very positive person. I believe in positivity. Even if कोई comment करके भी जाता है, I just write Jai Shri Ram. And with the big, this one, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Why? Because चलो आपने मुझे बोला आपका भला हो, भगवान आपका भला करे, that's it. Because I cannot bother myself. Right. उतने टाइम जितना टाइम मैं उनको रिप्लाई करने या उसमें लगाऊंगी, आई थिंक मैं उतने टाइम में कुछ बैठ के दो बहुत चार सारी लाइनें लिख चीजें लूंगी, और कुछ कंपोज कर लूंगी स्टूडियो में बैठ के. मे बी आई कैन मेक सम कॉल्स एंड गेट अ न्यू इवेंट डन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, अ न्यू रील, अ नाइस सॉन्ग. Yes. So you're inspiration for so many people. Yeah. Right. So there's young generation, they're struggling to become singers. So would you like to tell something, a message which you ever regretted in your journey? You had a long journey, Yeah. and you want something to tell them that they should or they shouldn't do. I think one thing that I'm very much against about, if I say, out of the things going on, are the trend. Why? Because ट्रेंड में कुछ एक चीज़ आती है एंड बंदा जो खुद कर रहा होता है, मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मतलब मेरा कुछ जोन ही अलग है, मैं कोई दूसरे जोन की सिंगर हूँ या मैं डांसर हूँ, बट बिकॉज आजकल हिप हॉप बहुत चल रहा है तो मुझे भी हिप हॉप ही करना पड़ेगा. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, गोइंग विद द ट्रेंड इज नाइस, बट यू कैन नॉट लूज योर सेल्फ. You have your niche. Yes, you have to be there as yourself. I have to be there as Ananya Mishra. If I want to be, मुझे सिर्फ कुछ views चाहिए रील पे, या फिर सिर्फ कुछ likes चाहिए, या फिर सिर्फ कुछ followers चाहिए, इसलिए मैं trending audios पे रील बनाते जाऊँ, trends follow करते जाऊँ. I think that's not me. I want my audience who would be loving me for the next 10, 15, 20 years. I might not be working then, I might not sing more songs or something like that, I might not perform then, but they should remember me. यार अनन्या का एक गाना था, चल वो सुनते हैं, maybe while driving, maybe while having good time. So you're trying to say that they have to be original. Be yourself. Yeah, Yes, true. make your music. Right. Or make reels, or make your things trending. Do something on your thing that वो trending बन जाए. The last thing I would really want to ask, Yeah. personally, Yes. what is Ananya's favorite song? आप सबके लिए गाते हो, Yes. लेकिन खुद के लिए कभी अभी भी गाते हो तो कौन सा गाते हो? अगर आपको words में बोलना है words में, if you want to sing for the audience, whatever you're comfortable with. Definitely. So my personal choice of music is listening to ghazals. Okay. आई एम अ गज़ल लवर. एंड मैं बड़ी ही हुई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत ज़्यादा सिंगिंग बैठ के ऐसे राग और ये सब चीज़ें सीखी नहीं, बट मैंने जो सीखा है वो जब मैं छोटी सी थी, कान में वो वायर वाले ईयरफोन्स आते थे और मेरे पास फ़ोन होता था छोटा सा, मैं वो कान में लगाकर और सिर्फ हरिहरन जी की गज़लें, गुलाम अली खान साहब की गज़लें, और मतलब ऐसे सुनते सुनते ही सीखा और ऐसे ऐसे बड़ी हुई. बट आई थिंक उनमें से एक गज़ल है जो मेरी बहुत फेवरेट है, और मैं चाहूँगी मैं मेरे ऑडियंस के लिए 2 लाइन गा दूँ. Please. Hmm, hmm,
चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ. So this is one of my favorite ghazals by Yasha ji and Ghulam Ali Khan Sahab. Lovely. You have a So, yeah. strong, lovely voice, Ananya. Thank and you, all thank the you. very best for Thank your you new so much. venture. It Thank was you such so much. lovely talking to you. Same here. Thank you so much for having me here. Thank you.